بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن کلاس 9th اور سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اردو کے جو شارٹ کویسچن ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں، جو ان میں سے انشاءاللہ آئیں گے۔ آئیے جی اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو آئیے جی، حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ جب سراقہ بن جشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے بدلے انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، اور لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے اور سوچا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا تھا کہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی اہمیت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ طائب ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر حضرت علی کو فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا کیسا سلوک تھا؟ اگرچہ مرزا غالب کی آمدنی نہایت قلیل تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے مکان کے آگے لنگڑے، لولے، اندھے اور اپاہج لوگ پڑے رہتے۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کہا کہ میر صاحب کا کلام آ ہے، مطلب دکھی ہے، اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر کے کلام میں ان کے اشعار میں افسردگی اور رنج و غم کا اظہار ہے، اس کے برعکس مرزا کے کلام میں سنجیدگی کے ساتھ شوخی، طنز و مذاق بھی پایا جاتا ہے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ ظرافت مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی تھی۔ جب فرشتوں سے ملتے تو ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کے ہر مذہب اور ہر ملت کے دوست تھے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اور جس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں۔ قوم کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر قوائے دلی کو کام میں لایا جائے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں تمام ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے اور ہماری اندرونی قوتیں بیکار رہنے کی بجائے کام میں لائی جائے۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنی تعلیم اور عقل کو کام میں لانے کے لیے عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوت کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ کہ جب اس کے دلی قوت کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی انفرادی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، انسانی صفات کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔
दिल्ली कुआं को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? इसका नंबर नहीं इसमें लिखा हुआ, 9 के बाद आगे हर लिया, फिर 10 आ गया। दिल्ली कुआं को बेकार छोड़ने का मतलब है कि दिल की कुव्वतों से सही तरीके से फायदा ना उठाया जाए। दिल की कुव्वतों से मुराद है जिंदगी के मस्बत मकसद के तयन के लिए गौर व फिक्र करना, और जिस मस्बत मकसद के हसूल के लिए तमाम तर इनफरादी सलाहियतें, काबिलियतें और अहलियतें बुरे कार लाना। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप को सोच, फिक्र और अमल से ला तल्लक करके बगैर किसी मकसद के बेकार पड़ा रहे। शरीफजादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? शरीफजादे की गज़ल सुनकर सौदा ने बहुत तारीफ की। इस शेर को बार बार पढ़वाया और कहा, मियाँ लड़के जवान होते नजर नहीं आते, खुदा की कुदरत से उन्हीं दिनों में लड़का जल कर मर गया। सैयद इंशाह के इसरार पर जुरात ने कौन सा मिसरा पढ़ा? सैयद इंशाह के इसरार पर जुरात ने यह मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ पे फबती शबे दजूर की सूजी। हसबी कौन थी और इन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? हसबी उन लड़कों की नानी थी। इन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दसूर है कि अपने से बड़ों को सलाम करते हैं। उसके बाद जी बेदार ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? बेदार ने सलीम को जगाकर पैगाम दिया कि बालाहाने पर मियाँ जी बुलाते हैं। संजू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदते हुए बैल के साथ क्या सलूक किया? दिन में 4-4 खेवे करते, ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेमों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा भूसा डाल दिया, और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था, और फिर जोत दिया। अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेर जमन का रद्द-ए-अमल क्या था? जमन ने फैसला सुना और सुनाटे में आ गया और अहबाब से कहने लगा, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है जो अपने ऊपर भरोसा करे, इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। शेर जमन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? शेर जमन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेर जमन क्यों खुश था? अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेर जमन इसलिए खुश था क्यों ना कि अलगू चौधरी के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। इस दोस्ती की बना पर उसको यकीन था कि अलगू चौधरी इसके खिलाफ कभी फैसला नहीं करेगा। अगर जी नेक्स्ट जी, अगर आराम को ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है? काम करने वाला फर्द अगर रोजाना थोड़ा आराम सुकून नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो फिर इस तो फिर इसे ज्यादा आराम करना पड़ेगा, इसलिए आराम सुकून करना जरूरी है। अख्तर का हुलिया बयान करें। अधीर उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शबे बेदारी की वजह से सुरह लिबास पजामा और कमीज आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा नुमाया। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें जरूरी हैं? सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करनी चाहिए और सादा ग़िज़ा खानी चाहिए। रात को भरपूर सोना, नींद सोना चाहिए। शोर की आलूदगी से बचना चाहिए और बेजा परेशानी और तफक्कुरात से निजात हासिल करनी चाहिए। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अल निशात था। अख्तर को कौन तस्वीरें बना कर देता था? न्याजी अख्तर को तस्वीरें बना कर देता था। ड्रामा लहू और कलीम में मिर्जा अदीब ने क्या पैगाम दिया? इस ड्रामे में मिर्जा अदीब ने माशरे में मौजूद रियाकाराना किरदार की निशानदेही की है और समझाने की कोशिश की है कि अगर किस तरह सरमायादार गुर्बत में पिसे हुए मुफलिस और कलाश हुनरमंदों और फनकारों को अपना जरिया शोहरत बनाते हैं।
भैंस किस लिहाज से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है? भैंस का हाफजा कमजोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। बुलबुल को बागमां और सियाज से क्या गिला है? बुलबुल को बागमां और सियाज से कोई गिला नहीं था, क्यों ना कि कैद इसकी किस्मत में लिखी थी। बुलबुल के गाने की क्या वजह थी? माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन हांगी जिंदगी है, इसी वजह से ये हर वक्त गाना गाती है। बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कौवे इसे जाती तौहीन समझते हैं और उसी वक्त लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस वक्त शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता, इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। देहाती लड़का स्कूल गया तो इसने कैसा लिबास पहन रखा था? लड़के ने नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता तहमद तहमद कहते हैं लाचे को, और पाँव में पोटोहाड़ी जूता। मास्टर जी को चाय कैसी पेश की गई? मास्टर साहब को जो चाय पेश की गई वो कामयाब चाय नहीं थी, बल्कि लस्सी की तरह ठंडी चाय थी। आगे जी ये आगे इसके हमद नात के। कौन सा बंदा हमद सरा है? एक नाफरमान बंदा, यानी बागी व सरकश इंसान भी हम तेरी हमद बयान करता है। तीतर अल्लाह की अजमत कैसे बयान करता है? तीतर वाला तो है ही नहीं है। तीतर सुबह व शाम अल्लाह की अजमत बयान करता है, सुबहान तेरी कुदरत कहता है। ये इसका जवाब कर लीजिएगा। महरम और ना महरम में क्या फर्क है? बतौर शायर वाकफ और ना वाकफ में कोई फर्क नहीं। बाद सबा घर घर क्या लिए फिरती है? बाद सबा घर घर अल्लाह की वहदानियत व मौजूदगी और खालिक व रज़्ज़ाक होने का पैगाम लिए फिरती है। तोती व बुलबुल किसका जिक्र करती हैं? तोती व बुलबुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। उम्मीदें बहार के लिए किस बार की जरूरत है? शजर से व्यवस्था रहने की, यानी कौम से तल्लुक मजबूत रखने की। मीर ने नीम बाद आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है? मीर ने नीम बाद आंखों की मस्ती को शराब की मानंद करार दिया है। मीर तकी मीर ने होंठों को किस से तशबीह दी है? गुलाब के फूल की पत्ती से तशबीह दी है। आतिश ने अपनी कश्ते सुहन के बारे में क्या कहा? इसमें ख्वाजा आतिश कहते हैं कि शायरी की बेफिक्र व आज़ाद दुनिया हमेशा तरोताज़ा रही। ब्रह्मन को किस बात की हसरत रही? ब्रह्मन को बुतों से बातों की हसरत रही, काश के बुत से बातें करते। सुबहान तेरी कुदरत। ये ऊपर वाले सवाल का जवाब यहाँ पे आ गया। वो जो है तीतर क्या करते हैं? सुबहान तेरी कुदरत कह कर अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था? बुलबुल की किस्मत में कैद लिखी थी, वो भी मौसम बहार में। ले जी ये 40 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना आपने, ताकि पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।